السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اگلے ماہ سے کمی کا امکان ہے۔ حکومت اور صنعتی ذرائع نے بتایا کہ حکومت 1 ستمبر سے 15 ستمبر تک پیٹرول کی قیمت میں 97.2 روپے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2.31 روپے فی لیٹر کمی کی رعایت فراہم کرے گی۔ اسلام آباد میں وفاقی حکومت نے چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت نے عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کے فیصلے کرتے ہوئے 1997 ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ ججز تعداد ترمیمی بل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ حکومتی رکن بیرسٹر دانیال چودھری کے مجوزہ بل کے مندرجات بھی سامنے آ گئے ہیں، جن کے مطابق سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافہ کیسز بیک لاگ کے باعث ضروری ہے اور ججز کی تعداد میں اضافے سے کیسز کی بروقت سماعت اور فیصلوں کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والے 2 شہری طویل عرصے کے بعد گھر پہنچ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 10 سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی، جہاں پولیس نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ طویل عرصے سے لاپتہ 2 شہری بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اربوں روپے کی گیس چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جنرل مینیجر سوئی ناردرن گیس وقاص سنواری کے مطابق صوبے کے جنوبی اضلاع میں سالانہ 2 ارب روپے سے زیادہ کی گیس چوری ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جیلم ناصر محمود باجوہ کی تھانہ منگلہ کینٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں لوگوں نے اپنے تمام مسائل بتائے، جن پر فوری کارروائی کے احکامات صادر کرتے ہوئے موقع پر ہی ان کے حل کے احکامات جاری کیے گئے۔ اس موقع پر ڈی پی او نے کہا کہ پبلک سروس ڈیلیوری کے معیار کو بہتر بنانا جیلم پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بھوانا میں میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ کی وجہ سے صدیقیہ کالونی سے گزرنے والا سیوریج کا نالہ اوور فلو ہونے لگا۔ نالے کی صفائی ستھرائی نہ ہونے سے گندا پانی قریبی آبادی میں داخل ہونے لگا۔ گھروں کی بنیادوں میں پانی کھڑا ہونے سے اہل علاقہ شدید اذیت کا شکار ہو گئے۔ تعفن زدہ ماحول اور مچھروں سے تنگ شہری میونسپل کمیٹی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ جھیلم پنڈ دادن کھیوڑا روڈ کے قریب ایک بس الٹ گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر روانہ کر دی گئیں۔ بس الٹنے کا حادثہ روڈ پر موجود برساتی پانی کی وجہ سے پیش آیا۔ بس میں سوار تمام 15 مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا، جبکہ 3 معمولی زخمی افراد کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کر دی گئی۔ چونیا میں بارش کے باعث بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں ملبے تلے دب کر 7 سالہ بچی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ ایک حاملہ خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ دوسرا حادثہ محلہ سمو والا چونیا میں موسلا دھار بارش سے گھر میں کرنٹ آ گیا۔ اہل خانہ میں بشرا بی بی کرنٹ لگنے سے جھلس گئی، جبکہ اس کا خاوند معمولی زخمی ہوا۔ تیسرا حادثہ صدا میں پیش آیا، جہاں دیوار گرنے سے ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے وفد نے چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کا مقصد متعلقہ اداروں کے درمیان رابطے کو بہتر بنانا تھا اور ملاقات میں کمشنر کراچی، سیکریٹری داخلہ، سیکریٹری بحالی، ڈائریکٹر جنرل صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر اہم متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ حیدرآباد میں ہیسکو الیاس آباد سب ڈویژن کی غفلت اور لاپرواہی سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ مزید تفصیل بتائیں گے اسپیشل ٹی وی کے نمائندے عمران سعید۔ جی عمران، بتائیے گا۔ اس وقت موجود ہوں حیدرآباد ٹنڈو یوسف قبرستان میں، جہاں پر ہیسکو حیدرآباد الیاس آباد کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے 22 سالہ نوجوان وقاص بجلی کے پول پہ چڑھ کر کرنٹ لگنے سے انتقال کر گیا ہے۔ آئیے علاقہ مکین سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ آم کھانے کا پانی دے چاڑے یعنی متھے تھمبے دے چاڑے ہوا تھمبے کا پو ویچارے کرنٹ لگایا کرنٹ کا پو وری واپسی آئے ई कोन न को हॉस्पिटल में आया न को किथे ॿिए हंधि आया आहिनि ऐं 3 ॾींहं हॉस्पिटल रखण खां पोइ 4थे ॾींहुं मनाया। हुकूमत से यही चाहते हैं कि जो वाकई जो इसमें इन्वॉल्व है ना, जिन्होंने खंबे पे चढ़ाया, इसको काम नहीं आता था, इसको खाम खा के ना किसी न किसी तरीके से फोर्स करके या किसी तरीके से उनको खंबे पे चढ़ा के करंट लगा, उसके बाद वो भाग गए। وزیر آباد اللہ والا چوک میں پولیس اور مقامی انتظامیہ کے خلاف شیعہ کمیونٹی کا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے ذمہ داران پولیس ملازمین اور افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ پولیس نے خواتین عزاداران کے خلاف لاٹھی کا استعمال کیا۔ خواتین عزاداران کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مظاہرین نے مزید کہا کہ 40 ریلی نکالنا ہمارا حق ہے۔ نوشہر و فیروز میں افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں 2 مسافر کوچز میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 10 مسافر زخمی ہو گئے۔
जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर मुतलका हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में अगवा होने वाले नौजवान खादिम हुसैन मगस्सी की डाकुओं ने तशद्दुद करते हुए वीडियो वायरल कर दी। वीडियो में मगवी खादिम हुसैन अपने रिश्तेदारों से कह रहा है कि अगर उन्होंने एक दिन में डाकुओं को 1 करोड़ रकम ना दी तो वो उसे कत्ल करके लाश दरिया में फेंक देंगे। मगवी ने मजीद वीडियो में वरसा को कहा कि पैसे देकर मुझे आज़ाद करवाया जाए। बाबा बशीर बाबा मज़ादा मुमताज़ बचाओ आगे सुमारे दे पैसा लियो। इलाहाबाद और गिरदोनुमा में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। मरकजी अंजुमन ताजरान तहसील चूनिया की अपील पर इलाका भर के कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए। करियाना एसोसिएशन, सराफा मार्केट, मोबाइल यूनियन, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, शूज़ मार्केट, जनरल स्टोर्स और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी बंद कर दी गई। रहनुमा अंजुमन ताजरान हाजी मुनीर ने मजीद कहा कि हुकूमत ने महंगाई और बिजली बिल्स में आए टैक्सेस पर इजाफा वापस ना लिया तो हड़ताल जारी रखेंगे। लाइकुर रहमान ड्रग इंस्पेक्टर की तहसील चूनिया में छापामार कार्रवाइयाँ। मजीद तफसील देखते हैं असलम बाबर अंसारी की रिपोर्ट में। छंगामंगा मिनिस्टर हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर और चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमाल सलीमी की खसूसी हदायत पर बिलाल यासीन डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और लाइकुर रहमान ड्रग इंस्पेक्टर तहसील चूनिया ने दबंग कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर छापामार कार्रवाइयाँ करते हुए मेडिकल स्टोर्स को ड्रग एक्ट के खिलाफ वर्जियों पर चलान कर दिया। इस मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर का कहना था कि वारंटी और डॉक्टर नुस्खे के बगैर नशावर और स्टीरॉयड अद्वियात को फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अवाम तक मियारी अद्वियात की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। तहसील भर में गैर कानूनी नशावर अद्वियात और बगैर लाइसेंस के अद्वियात का कारोबार करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाएगा और मेडिकल स्टोर मालकान को हदायत की कि नारकोटिक और स्टीरॉयड ड्रग्स को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बेचना ममनू है। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पाकपतन में ताजरों की जानिब से शहर भर की दुकानें बंद कर दी गई, जिसके बायस कारोबारी सरगर्मी मुतासिर हो चुकी है। मजीद तफसील देखते हैं तारिक महमूद कम्बो की रिपोर्ट में। बढ़ती हुई बिजली की कीमतों और एफबीआर की जानब से लगाए जाने वाले टैक्सों पर आज पाकपतन में ताजरों ने एहतजाज करते हुए मुकम्मल दुकानें बंद कर दी हैं। शहरियों को खरीदारी में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। जी आज मुकम्मल पाकपतन मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है, जी भरपूर कामयाब तरीके नाल जारी है। असी हुकूमत नूं मैसेज देना चाहते हैं कि ताजरां उत्ते जिहड़ा टैक्स बिजली की सूरत जुल्म किया जा रहा है, यह जुल्म खत्म किया जाए, नहीं तो ताजर इस तो अगे भी एहतजाज करना जानते हैं। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो हमारे ही वोटों से गवर्नमेंट है और हमारी टैक्सों से गवर्नमेंट चलाई जा रही है और हम टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाए और IMF की पॉलिसी को भी ख़त्म किया जाए, वरना हम एहतजाज को जारी रखेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर एफबीआर के टैक्सेस को ख़त्म करते हुए बिजली की कीमतों में नुमायां कमी की जाए। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए इस्लामाबाद का रुख करेंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कम्बो, स्पेशल टीवी, पाकपतन। मुल्क भर की तरह मिंसनाबाद में भी हुकूमत की जानिब से जालिमाना टैक्सेस और हुकूमत वक्त की गलत पॉलिसियों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल और एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली अंजुमन ताजरान और अंजुमन शहरियान की क़यादत में निकाली गई। मजीद तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह मिंचनाबाद में भी अंजुमन शहरियान, अंजुमन ताजरान की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ जो जालमाना टैक्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ रैली निकाली जा रही है। रैली की क़यादत अंजुमन शहरियान है, अंजुमन ताजरान कर रहे हैं। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के सदर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हुकूमत से मुतालबात हैं कि जो इनकी अय्याशी हैं, जो हमारे मुल्क अपना आवाम के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, एक इन्होंने स्कीम बनाई है दोस्ताना किसान टैक्स, उसमें इन्होंने इंतहाई इतने टैक्स लगा दिए हैं कि जो कि हम ताजर उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसके अलावा जो बिजली महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा है और इसके अलावा जो हमारे मुलाजमिन भाई हैं उनकी तनख्वाहों पर टैक्स लगाया गया है। बाद ऐसी मेडिसन है जो दिल की अद्वियात हैं उन पर इन्होंने एडवांस टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से अद्वियात बहुत
बहुत महंगी हो गई है। एक गरीब आदमी जो हार्ट का मरीज़ है वो दवाई भी नहीं खरीद सकता। इसके अलावा रोज़मर्रा की अशिया जितनी भी हैं वो इंतहाई महंगी है। किसान दिन ब दिन पिसता जा रहा है। उसके बाद साथ को जो जुल्म हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तो हम खुदारा इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ मिनिस्टर से भी और सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि मुल्क में फौरी तौर पर टैक्स ख़त्म किए जाएँ और इन गरीबों को रिलीफ दिया जाए। ये थे अंजुमन ताजरान के सदर। हमारे साथ अंजुमन शहरियान के जो ओहदेदारान हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इन्होंने ताजर दोस्त नाम से एक टैक्स राइज किया है, उसमें ये ताजरों के दुश्मन हैं। ये अगर एक बंदे को 1 लाख रुपए टैक्स आगे वो पे कर रहा है, हालात आपके सामने हैं, किसान रुल रहे हैं, फसलों के रेट नहीं हैं, खादों के और मेडिसिन की दवाइयों के अद्वियात के रेट बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद ये टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। ताजर तो बेचारे भूखे बैठे हैं, उनसे तो किराया अफोर्ड नहीं हो रहा, वो अब कैसे इतने टैक्स देंगे। इसलिए मेरी हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि खुदा रहा ताजरों पर रहम करें। सर जी, हमारे साथ अंजुमन जो ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं। ये अपनी अजाशियाँ नहीं बंद कर रहे, गरीबों पर बोझ डाली जा रहे, टैक्सी पे टैक्सी लगा रहे, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथ ही अंजुमन ताजरान दोस्त टैक्स लिखा है या ये एक स्कीम बनाई है, ये हमारे मुंह पे एक चुपाता मारा है और हमें गैरत दी है, हमें चैलेंज किया है कि आप जैसा भी हम करना चाहें कर सकते हैं। दोस्त के नाम पे दुश्मनी कर रहे हैं हमसे। हम कभी भी ये टैक्स नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी मानेंगे। लेकिन हम टैक्स देना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक ही हुकूमत वक्त से कहता हूँ, टैक्स लें लेकिन अपनी अय्याशियों पे मत लगाएं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे पेट्रोल पे मत लगाएं। वो टैक्स लगाएं तो हमारी सड़कों पर हमारी बिजली सस्ती करके और हमारी जो सहूलियात पाकिस्तान है उसको देकर हम टैक्स देना चाहते हैं। लेकिन टैक्स वो देंगे जो हमारे ऊपर लगेगा, हमारे लिए होगा, आपके मैखानों के नहीं, आपके यूरोप के टूर के नहीं, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों का नहीं टैक्स देंगे, नहीं टैक्स देंगे, नहीं टैक्स देंगे। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे, अंजुमन शहरियान, अंजुमन ताजरान के ओहदेदाराना का कहना है हुकूमत ये जालिमाना टैक्सेस फिलफौर वापस ले और आवाम को रिलीफ दे। जी, दीना में ताजिर तंजीमों का जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ आज हड़ताल का ऐलान। सब्जी मंडी, गला मंडी समेत शहर भर में किसी दुकान का ताला न खुल सका। दुकानदार ने कहा 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। दुकानदार हर महीने लातादार टैक्सेस कैसे जमा करवाएं। इस मुश्किल हालात में हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत छोटे ताजरों को रिलीफ देने के बजाय टैक्सेस की भरमार कर रही है। ताजरों ने कहा कि बिजली के बिल पर बेशुमार टैक्सेस लगाने के बाद भी मजीद इजाफी टैक्सेस कहां से जमा करवाएं। चूनिया रोड इलाहाबाद के गलियां बाजार को चंद घंटों की बारिश ने हर तरफ से जल थल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए मुतहरिक हो गए। मजीद तफसील देखते हैं असलम बाबर अंसारी की रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अपनी टीम और मशीनरी के हमरा नकासी आप के लिए मुतहरिक हो गए। चूनिया इलाहाबाद रोड और गलियों बाजारों के पानी की नकासी शुरू करवा दी गई और गलियों बाजारों से पानी निकालने वाली मोटरों को फौरी तौर पर चलवाया ताकि गलियों बाजारों से गुजरने में शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहा अनवर का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के तहत शहर चूनिया को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात मेहनत जारी है। चूनिया और छांगा मांगा में हुकूमत के बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। ताजिर बरादरी ने करियाना मार्केट, क्लॉथ मार्केट, सरापा मार्केट, मोबाइल मार्केट और दीगर तिजारती मराकज़ शटर डाउन हड़ताल कर दी। ताजिरों ने कहा कि मुल्क भर में इंटरनेशनल और नेशनल कंपनियां, कारखाने हुकूमती जालिमाना टैक्सेस की वजह से बंद हो गए। जालिम और बेहिस हुकूमत की टैक्सेस पॉलिसियों को मुस्तरद करते हैं। ताजिर बरादरी ने मजीद कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें होश के नाखुन लें, आवाम को रिलीफ मुहैया करने के लिए पॉलिसियां बनाएं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।